न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अर्पण रेस्टोरेंट, बीएन घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, स्काई वर्ल्ड नियर राहल मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। आसनसोल नगर निगम के बोरो नंबर 6 के चेयरमैन और वार्ड 84 के तृणमूल कांग्रेस पार्षद डॉक्टर देवाशीष सरकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बुधवार को उन्होंने निगम कार्यालय में अपना इस्तीफा पत्र जमा किया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नहीं छोड़ी है और फिलहाल पार्टी में बने रहेंगे। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर सरकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने परिवर्तन के पक्ष में जनादेश दिया है और उसी का सम्मान करते हुए उन्होंने यह फैसला लिया। डॉक्टर सरकार ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले कुछ शिकायतों के आधार पर जाँच की मांग की थी और अब उस जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों से भी जांच कराने की बात कही ताकि सभी तथ्य जनता के सामने आ सके। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति या मामले का नाम लेने से परहेज किया। इधर उनके इस्तीफे पर आसनसोल नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चैताली तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनके अनुसार पिछले 15 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार के कारण पार्टी के भीतर भी कई लोग असहज महसूस कर रहे थे। चैताली तिवारी ने आरोप लगाया कि जनता के विकास और कल्याण के लिए आने वाले पैसा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। उन्होंने कहा कि अब सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस के अंदर के लोग भी खुलकर सामने आ रहे हैं और अपनी असहजता जाहिर कर रहे हैं। এখনই দিলাম দুটো কারণ আছে। একটা হচ্ছে দেখুন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ওভারওয়েলমিংলি একটা ম্যান্ডেট দিয়েছে চেঞ্জের জন্য, একটা পরিবর্তনের জন্য, সেটাকে সম্মান জানানো। এবং দ্বিতীয় দেখুন, ব্যুরো চেয়ারম্যানের পদটা তো খুব ছোটো পদ নয়, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপূর্ণ পদ। এবং আসানসোলের মতো শহরে আমি মনে করি সেটা খুব বড় পদ। সেখানে যথাযথভাবে উইদিন দ্য ফ্রেমওয়ার্ক অফ দি কনস্টিটিউশন নিজের ডিউটি ডিসচার্জ করতে পারছিলাম না, ডিউ টু সার্টেন আনঅ্যাভয়েডেবল সার্কামস্টেন্সেস বিয়ন্ড মাই কন্ট্রোল। তো সেক্ষেত্রে আমার পদত্যাগ করা উচিত এবং আমি করলাম। আপনি কি কাজ করতে পারছিলেন না? না, এই ধরনের কোনো ব্যাপার না, পদত্যাগ করাটা উচিত। কেন চেঞ্জের ফেভারে পদত্যাগ করা উচিত। রাজনৈতিক কোনো চাপের ফলে? নো কমেন্টস। বলছি পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন, দল থেকে কি পদত্যাগ করছেন? না, এখনো করিনি। ঠিক আছে, দল থেকে পদত্যাগ আমি করিনি। আর কাকে দিলেন পদত্যাগপত্র? পদত্যাগপত্র যেহেতু মেয়র সাহেব নেই, আমি রিসিভিংয়ে মেয়র সাহেব, চেয়ারম্যান এবং কমিশনার, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার এবং সেক্রেটারি, চারজনকেই দিলাম। আপনি ছেড়ে দিলেন? হ্যাঁ। আপনার বড় যারা তারা কি সমস্যা করবেন? দেখুন, কাজ যদি না করতে পারেন থাকা উচিত না, আমার মনে হয়। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত। আমি দেখবেন আমার চিঠিতেও লিখেছি, এটা আমার ব্যক্তিগত স্ট্যান্ড, ব্যক্তিগত পজিশন। আজকে কি বলবেন? সাধারণ মানুষের জন্য কাউন্সিলর আছি এখনো। আমি বলছি, কাজ করতে না পারে এটা কি হঠাৎ বিষয় না দীর্ঘদিন ধরে এরকম হচ্ছে? লাস্ট 1 মাস তো অসুবিধা একটু হচ্ছিল। কেন? নির্বাচনের কারণে? আর রইল কিছু জিনিসে আমি তদন্ত চেয়েছিলাম সেপ্টেম্বর মাসে। মেয়র সাহেব সেটা তদন্ত অলরেডি চালু রেখেছেন এবং সেটাও একটা আবেদন জানিয়েছি, অনুরোধ জানিয়েছি যে যদি দরকার হয় ইডি বা সিবিআইকে দিয়ে তদন্তটা কমপ্লিট। তদন্ত কি বলবেন? ব্যুরো 6-এর তদন্ত এবং আমার ওয়ার্ডের কি বিষয়টা? যে আমি তদন্ত চেয়েছিলাম যে এটা যেহেতু কিছু অভিযোগ এসেছিল, যে এটাকে আরও ক্লিয়ার থাকা উচিত, মানুষের জানা উচিত সত্য কি। না, অভিযোগটা জানতে চাইছি। কোন অভিযোগ? কিছু অভিযোগ কোনো কাউন্সিলর করেছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি সঙ্গে সঙ্গে জানিয়েছিলাম যেটা ইডি বা সিবিআই তদন্ত হোক সেপ্টেম্বর মাসে। কোনো কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে? না না না, আমি পুরো বরোধ দিয়েছি, কারোর বিরুদ্ধে না। কাজগুলো যদি একটু বলেন। এটা ডিটেলে বলবো না, কেন দেখুন যেহেতু ইনভেস্টিগেশন চলছে এবং আমার কাছে সেপ্টেম্বর মাসের কপিও আছে। আপনারই সরকার, আপনারই কাউন্সিলর, আপনারই বড়, আপনি না, ওটা ট্রান্সপারেন্সি ইন পাবলিক লাইফ, ট্রান্সপারেন্সি ইন পাবলিক লাইফ। বলছি মানুষের রায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে গেছে বলে কি আপনি সেক্ষেত্রে করলেন? মানুষের রায়কে সবসময় অ্যাকসেপ্ট করা উচিত আমার মনে হয়। ऐसा था, कुछ विषय था, क्योंकि देखिए मेरी दल का मैंडेट नहीं है। दल ने मुझे बोरो चेयरमैन बनाया था, इसे तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए था, मैंने दे दिया। अभी तो आपकी मोदी सरकार काम नहीं कर पा रहे थे, कुछ दिक्कतें थी मेरे साथ और कुछ जांच की मैंने मांग सितंबर महीना में किया था, उसी तो मैंने नो कमेंट। কি বলবো, এটাই বলবো যে এত ভ্রষ্টাচার হয়েছে এই টিএমসি সরকারের আমলে, এত দুর্নীতি হয়েছে, এত অত্যাচার হয়েছে যে মানবিকভাবে যারা আছেন তারা তো আমার মনে হয় না যে ওই সরকারকে মেনে নিতে পারছেন বা মেনে নিতে পারছিলেন।
আজ হয়তো সবাই একটা ভালোভাবে শ্বাস নেওয়ার জন্যই হয়তো এই সরকার থেকে সবাই সরে সরে আসার চেষ্টা করছেন এবং রিজাইন দিচ্ছেন, এটাই আমার মনে হয়। তো কেন কি দুর্নীতির জন্য না অন্য কোনো কারণ, কি বলবেন? ওনাদের দুর্নীতির কথা আমার বলার কিছু নেই, আমি সেই সব ব্যাপারে কিছু অবগতও নই, জানি না, কিন্তু এইটুকু বলতে পারি টিএমসি সরকারের তো দুর্নীতি প্রত্যেকটা জায়গায় হয়েছে। আমাদের পশ্চিমবাংলাতে যেইভাবে দুর্নীতি হয়েছে আপনারা সকলে সচক্ষে দেখেছেন। সাধারণ মানুষের গরিবের টাকা, ট্যাক্সের টাকা, সেই টাকা নিয়ে পরে তারা সব নিজেদের খাতে ঢুকাচ্ছে, অথচ মানুষের কোনো কাজকর্ম হচ্ছে না, কোনো সেবা তারা দিতে পারছেন না। তো মানুষের তো মন এর কারণে হবে, পরিবর্তন হবে। পুরো রাজ্য জুড়ে দেখা যাচ্ছে পালাবদল, পুরো রাজ্য জুড়ে, আর এইখানেও আমরা দেখছি পালাবদল। এটাকে কিরকম দেখছেন? হ্যাঁ, আমি তো এইটুকুই বলবো যে আজ মানুষ, সত্যি কথা বলতে না, মানুষ নিঃশ্বাস নিতে পারছিলেন না। ওনাদের পার্টিতেও যারা ছিলেন তারাও হয়তো মনে হয় নিঃশ্বাস নিতে পারছিলেন না। ধীরে 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 সবাই আজ এই আমাদের মোদিজির প্রেরণায়, অনুপ্রেরণায় সবাই চলতে চাইছে এবং চাইছিলেন। তার একটা রাস্তা খুলে গেছে, আস্তে আস্তে সবাই এদিকে আসবে, এটাতে আমার আর কিছু বলার নেই। সবাই আসুক, আমরা এটাই তো চাইব। दुर्गापुर के सिटी सेंटर बस स्टैंड इलाके में बुधवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई जब कुछ लोगों ने दो व्यक्तियों को जबरन एक 4 पहिया वाहन में बैठा लिया। भैया वाहन में मौजूद एक महिला ने आरोप लगाया कि दोनों व्यक्तियों पर दुष्कर्म समेत क्षेत्र में आतंक फैलाने का गंभीर आरोप है। प्रकाश पासवान नामक व्यक्ति ने बताया कि संतोष पासवान और एक अन्य युवक उनके बेटे हैं। उनका दावा है कि दोनों पूर्व विधायक एवं तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नैना चक्रवर्ती के साथ काम करते थे। बुधवार को वे एक मामले में जमानत के लिए दुर्गापुर महकमा अदालत आए थे। इसी दौरान कुछ भाजपा नेता वहां पहुंचे और दोनों को गाड़ी में बैठाकर ले गए। स्थानीय सूत्रों के अनुसार संतोष पासवान पांडुसर क्षेत्र में तृणमूल के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं तथा पूर्व विधायक नैना चक्रवर्ती के करीब है। उन पर 2021 विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद क्षेत्र में हिंसा और आतंक फैलाने के आरोप भी लगे हैं। 2026 विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से वह कथित रूप से क्षेत्र छोड़कर फरार थे। घटनास्थल पर मौजूद भाजपा समर्थकों का कहना था कि संतोष पासवान को थाने ले जाया जाएगा। इस घटना को लेकर इलाके में भारी तनाव और चर्चा का माहौल बन गया। हम उन्हें करी है, मारपीट नहीं करी, हम मुझ बस आते हैं। দাদা আপনাকে নিয়ে যাচ্ছে কেন, কি করেছেন? हम कोर्ट में आते बिल लेने के लिए। नहीं ऐसा नहीं किया कभी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसा आए थे कोर्ट में बिल लेने के लिए आए थे, वो भी फंसाने के लिए पकड़ी चोरी वाला केस लगाया। बहुत बड़ा घटिया आदमी है। नहीं बोलिए दीदी, ऐसा मत बोलिए। मेरा एनजीओ बर्बाद कर दिया, मेरा एनजीओ सारा लूट लिया, मेरा बच्चों का কি নাম, এদের নাম কি? संतोष पासवान। ना दादा ऐसा कुछ भी नहीं किया दादा, ऐसा कुछ भी नहीं बात है। हम लोग मंदिर बनवाए, भंडारा करवाए, पूजा पाठ किए। आप देख सकते हैं, जाके आम बागान में जाकर रिपोर्ट ले सकते हैं। आम बागान में मंदिर बनवाए हम लोग, 2 मंदिर बनवाए, रोज भंडारा करते थे हम लोग। पानी चलो पानी लो, पानी के लिए हम नहीं मारपीट कीजिएगा। जो किया था वैसे बोल दे, माफ कर दीजिए। पांडेसर में आप जनता के सामने हमको आपका बाप बेटा है ना। এরা সব টিএমসি মানে নেতাগুলো আছে কাটমানি খেয়েছিল প্রচুর 2021 পর অনেক কাজ করেছে, ঘর করেছে, চুরি করেছে, মেয়েদের গালাগালি করেছে, ফেসবুকে নমনমালা কমেন্ট করেছে ফেসবুকে। তাই আজকে লোক খবর পেয়েছে বেলনিতে কোর্টে এসছে, এরা তো পালিয়ে গেছে ভোটের পর, পাওয়া যাচ্ছে না কাউকে। এবারে খবর কেউ করেছে, এরা এসে আপনার যা কাজ করছে সব। এরা কোন পার্টির নেতা ছিল? এটা টিএমসি। কি নাম? संतोष पासवान। কোন এলাকা ছিল? पांडुसर डालूबाग। কি হয়েছিল? हमें जाए ना, हमारे बोल रहे पापा आपका नाम से भी केस हुआ है,
और क्या चीज़ क्या बोला, ऐसे ऐसे बोला कि क्या, तो हम तो पार्टी फुटी में रहते नहीं हैं, लेकिन हमको बोला चलो साथे साथे बेल करा लेंगे, तो ये बेल कराने के लिए बैठे हुए थे। जब तक ये लोग आया आवा के पूरा এরা কারা? এরা কোনো রাজনৈতিক দলের কেউ? যারা দল है। আপনার ছেলে কি কোন করতে? পার্টি? কোন পার্টি? बीजेपी আর আপনারা? टीएमसी। আচ্ছা, তো কি জন্য নিয়ে গেল? তো আপনার ছেলেরা কি কোনো সন্ত্রাস করেছে ওই এলাকায়? কোনো সন্ত্রাস করে নাই, খালি আর নাম ছিল একটু দাদার সঙ্গে ঘুরতো। কোন দাদার সাথে? ধনেদার সঙ্গে, বাস আর কিছু নাই। কোনো পার্টির এথি ছিল না, কি বলছে একটা প্রধান, সব কিছু নেই ছিল। আপনার ছেলে কি ছিল ওই এলাকায়, দায়িত্ব কি ছিল? দায়িত্ব ছেলে এথি ছিল, কি বলছে মুখিয়া भी ছিল না, প্রধানও নাই, উপপ্রধান না, ওইসব নাই, কিছু নাই। কি নাম আপনার ছেলে? সন্তোষ পাসওয়ান। ওর কোন নেতার সাথে থাকতো? ধরেন্দার আগে তো টিএমসি ছিল, हम सब पार्टी फाटी में रहते नहीं। বেল করাতে সময় নিয়ে চলে যায় তারা। हाँ গাড়িটা বলে চাপি বলে চাপাই করে লিখে লোক আমাকে ছেড়ে দিলে, আমি বলে আমাকে লিয়ে চলো, দুটো ছেলে তুই লিখে কি কৃষ্ণা পুরি লিখবে কি করে? শুধু আপনার ছেলেই ছিল না আর কাউকে নিয়ে? না গেছে? না, ওই দুটো জেলে গেছে। আর একজনের নাম কি? সন্দীপ পাসওয়ান। দুটি আমার ছেলে। কারা নিয়ে গেল? যারা নিয়ে গেল ওদেরকে চেনেন? বাই নেম हाँ, চেনেন? हाँ, কি নাম? नाम जानी। 8 नंबर बोटे, दुटी 8 नंबर बोटे। নাম কি তাদের? ওদের কি भारती बोटे नाम। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस संचालित बैद्यनाथपुर ग्राम पंचायत में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। पंचायत प्रधान अच्छे बावड़ी समेत 12 पंचायत सदस्यों ने एक साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सभी ने अपना इस्तीफा पांडेश्वर के वीडियो को सौंपा। इस्तीफे के बाद प्रधान और अन्य सदस्यों ने दावा किया कि राज्य में पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार के दौरान हुई कथित भ्रष्टाचार के मामले अब सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद कई तथ्यों का खुलासा हुआ है। यदि उन्हें इन मामलों की जानकारी पहले होती तो वे काफ़ी पहले ही पार्टी छोड़ देते। इस्तीफा देने वाले सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि 5 जून को विभिन्न समाचार माध्यमों और सोशल मीडिया में पूर्व विधायक तथा तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्र चक्रवर्ती की देखरेख वाले एक परिसर में बड़ी मात्रा में राहत सामग्री और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद होने की खबरों के बाद वे असहज स्थिति में आ गए हैं। सदस्यों का कहना है कि आम लोगों के बीच जाने पर उन्हें लगातार सवालों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से यह पूछा जा रहा है कि जरूरतमंद आपदा प्रभावित लोगों को राहत के लिए तिरपाल उपलब्ध नहीं हो पाए, जबकि बड़ी संख्या में तिरपाल कथित रूप से जमा कैसे थे। इस्तीफा देने वाले जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में उनके लिए जनता के बीच रहकर काम करना मुश्किल हो गया है। इसी कारण उन्होंने पंचायत सदस्य पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया। ইস্তফা আমরা দেখেছেন যে 4 তারিখের পর যেভাবে পালাবদল হয়েছে সরকারের, বিভিন্ন টিভির মাধ্যমে বা সোশ্যালের মাধ্যমে যেভাবে আমরা দেখছি, যেভাবে নেতাদের দুর্নীতি, যদি সত্যি এরকম জানতাম যে এরকম দুর্নীতির সাথে সবাই জড়িত আছে, তাহলে এই পার্টিটাই করতাম না। দেখলাম যে ইনি আমাদের বিধায়ক ছিলেন, ওনার বাড়িতে যে ত্রাণ সামগ্রী পাওয়া গেছে, প্রচুর সরকারি জিনিস পাওয়া গেছে, তো খারাপ লাগছে এই জন্য আমাদের যে আমরা গরিব মানুষদেরকে তিরপল হয়ে দিতে পারতাম না কোনো কিছু জিনিস। তো সত্যি খুব খারাপ লাগছে, লজ্জা লাগছে, সেই জন্য বিশেষ করে ইস্তফা দেওয়ার জন্য। अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट, जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।
सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ट्रायल। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, डीएसए, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। पश्चिम बंगाल सरकार की नई मंत्री परिषद में विभाग के बंटवारा कर दिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां सौंप दी है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार कुल्टी के विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार को राज्य के 2 महत्वपूर्ण विभाग जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी पीएचई और लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी दी गई है। इस विभागों की भूमिका पेयजल आपूर्ति और आधारभूत ढांचे के विकास में बेहद अहम मानी जाती है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गृह परवर्ती मामले, भूमि एवं भूमि सुधार, विद्युत तथा सूचना एवं संस्कृति सहित कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। वहीं दीपक बर्मन को स्कूल शिक्षा, आवास तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एवं वस्त्र विभाग का दायित्व दिया गया है। स्वपन दास गुप्ता को राज्य का नया वित्त मंत्री बनाया गया है, जबकि डॉक्टर शरदत्त मुखोपाध्याय को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निश्चित प्रमाणिक उत्तर बंगाल विकास के साथ जल संसाधन, अन्वेषण एवं विकास विभाग का प्रभार मिला है। डॉक्टर इंद्रनील खान स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के रूप में युवा कल्याण एवं खेल तथा उपभोक्ता मामले विभाग संभालेंगे। कैबिनेट मंत्रियों में दिलीप घोष को पंचायत एवं तथा कृषि विपणन विभाग दिया गया है। अग्निमित्रा पाल को शहरी विकास एवं नगर मामलों का विकास सौंपा गया है। अर्जुन सिंह को श्रम एवं परिवहन तथा डॉक्टर शंकर घोष को संसदीय कार्य एवं पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। কালকে যাব ডিপার্টমেন্টে और आई नो द थ्रेड एंड वायर এরা বলছে 80% হয়েছে 90% কাজ হয়নি পাইপ লাগিয়ে দিয়েছে বাড়িতে জল যায় না এটা সব সময় এই রকমই পুরো পশ্চিম বাংলায় চলছে এন্ড উই উইল খতিয়ে দেখব পুরো পশ্চিম বাংলায় অ্যাকচুয়ালি হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড কত বাড়িতে জল গেছে যে ক্লেম করছে অত বাড়িতে জল আছে কিনা আর আমরা সমস্ত বাড়িতে যেমন জল পৌঁছাতে পারি তার ব্যবস্থা করব। पश्चिम बंगाल के बुदबुद में एक सनसनीखेज मामले में तृणमूल कांग्रेस के चकतेतुल ग्राम पंचायत प्रधान अनूप मेटे को गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप है कि मृत श्रमिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि से भी कटमनी वसूली जाती थी। पुलिस ने मंगलवार को उन्हें गिरफ्तार किया और बुधवार को दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने के और अदालत परिसर के बाहर चोर चोर के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। अनूप मेटे पर अवैध वसूली, बालू कारोबार
में अनियमितता, आवास योजना में भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं की राशि के वितरण में गड़बड़ी जैसे कई आरोप लगे हैं। हालिया शिकायतों के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर कार्रवाई हुई है। भाजपा विधायक राजू पात्रा ने कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जनता के पैसे की लूट का हिसाब लिया जाएगा। वहीं पुलिस का कहना है कि इस दर्ज शिकायतों और प्रारंभिक जांच के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। की कारण আটকেছে আমাদের পুলিশ সাহায্য করছে চোরদেরকে পুলিশ সাহায্য করছে বিজেপি সরকার আজকে ভদ্রতা দেখিয়েছে হ্যাঁ প্রশাসনের আজকে আমাদের বিজেপি সরকার আছে বলে এরা এত কথা বলতে পারছে। আজকে দাঁড়িয়ে বলছি আমি সুমন মজুমদার, আজকে এত সুন্দরভাবে আমরা করলাম এই ডাকাতকে এইভাবে প্রোটেকশন দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর আগে যখন এরা চুরি করতো এদেরকে এসে টেবিলে তোলা অনুব্রত এদের জন্য পারফেক্ট ছিল, কারণ আজকে 31 দিন এরা পাওয়ার দেখানো শুরু করেছে। 31 দিন আগে এরা টেবিলের তলায় ছিল, এরা টেবিলের তলায় তখন ছিল। ঠিক আছে, এই পুলিশ প্রশাসনের এই ব্যক্তিটি জানি না এই অফিসারটি কে আছে, আমি পরে নামটা পরে দেখছি। आसनसोल मंडल के अंतर्गत पानागढ़ में बुधवार सुबह एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने से अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और तेजी से राहत कार्य शुरू किया। जानकारी के अनुसार पानागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया से आ रही मालगाड़ी स्लो लाइन से स्टेशन की ओर बढ़ रही थी, तभी उसके 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि पटरी से उतरने के बाद भी डिब्बे करीब 500 मीटर तक घसीटते रहे। इस घटना के कारण पानागढ़ स्टेशन के पास 103 नंबर रेलवे फाटक बंद हो गया, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेलवे की त्वरित कार्रवाई के चलते करीब 2 घंटे बाद मालगाड़ी के डिब्बे को फिर से पटरी पर चढ़ा दिया गया। हालांकि हादसे में रेलवे ट्रैक के कई स्लैब क्षतिग्रस्त हो गए। फिलहाल रेलवे अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। কতক্ষণ ধরে খারাপ বলছে তো ঘন্টা দুয়েক দিয়ে সরাবার কোনো ব্যবস্থা না, গাড়ি পড়ে গেছে বলছে লাইনে মালগাড়ি পড়ে গেছে। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेस, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion, and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation.
आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल आसनसोल। कॉल 8586976165। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। बाराबनी के आमनाला प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को कक्षा चलाने के दौरान छत का प्लास्टर टूटकर गिर गया, जिससे 3 छात्र घायल हो गए। एक छात्र के सिर में चोट लगी, जबकि 2 अन्य के हाथ और पैर में चोट आई है। घायलों को तत्काल केलेजोड़ा ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ महीने पहले ही स्कूल की मरम्मत हुई थी और घटिया निर्माण कार्य के कारण यह हादसा हुआ। घटना के बाद इलाके में रोष फैल गया। पुलिस और स्थानीय विधायक अरिजीत राय भी मौके पर पहुंचे। मामले की जानकारी प्रशासन को दे दी गई। আমি জানতে পারছি যে এখানে আপনার ওই যে বাচ্চারা স্কুল ছিল, বাচ্চারা স্কুলে এসে আমি খবর পাই, আমার এখান থেকে ফোন করে যে 3 মাস আগে এটা পুরো ট্রিটমেন্ট হয়, মানে পুরো স্কুলটার হয়, মানে কী বলে রিপেয়ারিং হয়, ঠিক আছে। রিপেয়ারিং করে সেই রিপেয়ারিংটা পুরোটাই ছেড়ে বাচ্চার একটা মাথায় পড়ে, কারো পায়ে পড়ে। ভাগ্য ভালো সেরকম বড় কিছু দুর্ঘটনা ঘটেনি। যদি বাই চান্স কিছু বড় কিছু দুর্ঘটনা ঘটে যেত। স্যার আমি কিন্তু যে মুহূর্তে হয়েছিল সেই মুহূর্তে আমি এখানে ছিলাম, ঠিক আছে। আমার অসুস্থতার কারণে আমি বাড়িতে ছিলাম, আমার পায়ে লেগেছে। তো আমি কিছু পরে শুনলাম যে এরকম একটা হয়েছে দুর্ঘটনা, কিন্তু কতটা হয়েছে সেটা আমি জানি না, ঠিক আছে। এটা রিপেয়ারিং হয়েছিল নাকি? রিপেয়ারিং তো হয়েছে, রিপেয়ারিং তো সত্যি হয়েছে। তো রিপেয়ারিং আমি কিছু জানি না কতটা কি হয়েছে না, স্যারদের সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি, ঠিক আছে। বাইরের ঠিকাদার ইঞ্জিনিয়ার যা করেছে তাই করেছে, স্যারদের কোনো কিছু এখানে কোনো কিছু নেই। বিগত 15 বছর ধরে যে লুট হয়েছে এই রাজ্য জুড়ে, সেই লুটের থেকে এই প্রাইমারি স্কুলগুলো বাঁচেনি। এবং এখানে এসে যেটা দেখলাম, মানে চোখ ধাঁধিয়ে গেল দেখে যে বাচ্চারা পড়ছে ওইখানে। আপনারা কি দেখলেন কিভাবে ছাদের চাল ছেড়ে পড়েছে, একজনের ইনজিওর্ড, 2 ছোট্ট বাচ্চা, 3 জন, একজনের পায়ে লেগেছে। তো কেন হবে না? চোখের সামনে দেখছি যে প্লাস্টিকের প্রলেপের ওপর চুন দিয়ে ঢেকে মানে থিকনেস যদি দেখেন নেই বলা চলে, জাস্ট চিটিয়ে দেওয়ার মতো কাজ। এইভাবে করে সামান্য 2 জলছাদ আর এই স্কুলের এই রং এইটুকু করে 6.5 লাখ টাকা বিল তুলেছে। এখানে দেখুন বড় বড় করে লেখা আছে। लेटा हुआ था और कोई टीचर या पेरेंट्स भी पीछे से आया, वो कोई पीठ सहला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन किसी को हम सीपीआर देते हुए नहीं देखे। 28 मई 2026 को सेंट विसेंट हाई एंड टेक्निकल स्कूल के समर कैंप के दौरान स्विमिंग पूल में हुई दुर्घटना में मासूम अद्विक हेलेरियन की मौत हो गई थी। अब बच्चे के परिजन न्याय की मांग को लेकर आगे आए हैं। 10 जून को अद्विक की मां श्वेता कुमारी ने आसनसोल नगर निगम के विपक्ष की नेता चैताली तिवारी को एक लिखित आवेदन सौंपकर मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच की मांग की है। परिवार का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन और संबंधित कर्मचारियों की ओर से सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी में लापरवाही बरती गई हो सकती है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतियां भी आवेदन के साथ संलग्न की गई है। परिजनों का कहना है कि उनके बेटे को न्याय मिले और भविष्य में किसी अन्य परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मामले की निष्पक्ष जाँच बेहद ज़रूरी है। 28 तारीख को 7:45 में हम उसको एंटर किए। हम लोग तो बाहर रहते हैं, कैंपस के अंदर रहते हैं, कैंटीन के पास थे। तो उसमें से एक बच्चा दौड़ते हुए आया 8 बजे के करीब और बोला कि आंटी आर्विक डूब गया। तो हम जैसे ही अंदर गए तो मेरा बच्चा पुल के बाहर था और सब लोग, जो भी टीचर था, शायद टीचर था या नहीं था, लेकिन पेरेंट्स लोग था, वो लोग
उसका पीठ सहला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और एम्बुलेंस भी नहीं आया, CPR भी नहीं दिया गया, कुछ नहीं किया गया, ना फर्स्ट एड हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इसमें से 2 पेरेंट्स आया और उसको कंधे में लेकर, ये क्या बोलते हैं, बाइक से लेकर हिलव्यू हॉस्पिटल गया। वहाँ पे डॉक्टर ट्रेनर तो स्कूल आया ही नहीं था, 2 टीचर था, एक लाइब्रेरियन था और एक कॉमर्स का टीचर था। मेन ट्रेनर जब नहीं आया तो आप क्यों स्कूल करवाया? जब आप नहीं, आपको पता है कि जो सिखाने वाला मेन है वो जब नहीं आया स्कूल में, उस दिन सेंट पैट्रिक छुट्टी दिया था, उस दिन एक नेशनल हॉलीडे भी था, तो आप क्यों, आप मतलब मजाक समझते हैं? बच्चा लोगों की ज़िंदगी मतलब मजाक ही है ना आप लोग के लिए। स्कूल के अंदर आप छोड़ दिए हैं, 35-30 बच्चे को छोड़ दिए हैं आप, बिना ट्रेनर का, बिना टीचर का, किसके भरोसे आप छोड़े? हम लोग तो स्कूल के भरोसे छोड़ते हैं ना बच्चे को। দেখুন, এটা তো খুবই বেদনাদায়ক একটা কথা। আমরা স্কুলে বাচ্চা পাঠাচ্ছি, পুরো শিক্ষকদের একটা দায়িত্ব থাকে, ওখানকার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব থাকে সেই বাচ্চা যতক্ষণ স্কুল ইয়েতে থাকবে সেই সময় তাদের দায়িত্ব তাদের উপরে বর্তায়। তাদেরকে তাদের সব কিছু দেখা দরকার আছে, তাদের সেফটির দায়িত্ব তাদের রয়েছে। একটা যখন সামার ক্যাম্প হবে তো সেখানে একটা মেডিকেল টিম অবশ্যই থাকা উচিত। সেখানে বাচ্চাদের সুরক্ষার জন্য ঠিক রকমভাবে যারা আপনার সুইমিং করায়, যারা ট্রেনার আছে তাদের থাকা দরকার আছে। প্রিন্সিপালের এই জিনিসগুলো তো সব কিছু দেখা উচিত ছিল। আজ একটা বাচ্চার সঙ্গে হয়েছে, ওনার বক্তব্য অনুযায়ী যেটা আমিও শুনলাম এবং আমারও মন বলে যে আজ একটা বাচ্চার হয়েছে, বাকি বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও তো এটা হতে পারে বা হতে পারতো। এটা ঠিক লাগেনি। আমরা এই জিনিসগুলোকে অবগত করলাম, চেষ্টা করব যদি ওনাকে কিছু হেল্প করতে পারি কোনো ব্যাপারে। আজ শুনতে পেলাম, খুবই দুঃখ লাগলো যে প্রিন্সিপালও নাকি ওনার বাড়িতে গিয়ে একটু দেখা করেননি, কোনো কন্ডোলেন্স ওনার নিয়ে বাচ্চার নিয়ে হয়নি। একটা মায়ের কাছ থেকে 10 মাস বাচ্চাটাকে পেটে রাখার পর যে মায়ের কাছ থেকে বাচ্চা চলে যাওয়ার যে যন্ত্রণা, যার যায় সেই না বোঝে। अर्पण रेस्टोरेंट DN घाटी ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर DN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम।